Hello students, today we are going to continue the same chapter, that is cyber ethics. So we have discussed a lot of things, what are the moral practices, what types of threats online, what is digital property. Now today we are going to learn some digital property rights. Page number 209. Digital property. As I have told, digital property refers to any digital information related to you or created by you. Any information which is in the form of digital means on any electronic device, your email ID, your bank account details, any article, anything, your identity, social identity, all these things are known as digital property which you have made online. It refers to the intellectual property rights given to persons over the digital property created by them. So to protect these rights, some intellectual property rights are given to the persons so that it can be prevented from any harm. They usually give the creator an exclusive right. I have told you what is intellectual property right. It is the right which is given to the person to protect its creation and skills over the use of his or her creation for a specific period. I told it's not, suppose you have written any article, okay, and for that you have got a digital property rights. So for that you will not, you will get intellectual property rights so that no one can copy it and present it as their work, okay. And when you get intellectual property right in the form of copyrights, trademarks, it is not forever, it is for a particular period of time. The law states that the unauthorized copying, storing or distribution of another individual's digital property is a criminal offense and is subject to penalty under the law. If it means if you are copying or storing or selling those digital properties which belongs to someone without his or her permission, if you are doing this, you will have to pay. Okay, you will get punishment for that. Now, potential threats to digital property rights. First, you know what is potential threat. A threat is an impending danger that has the potential to cause serious harm. ठीक है, मीन्स कुछ इस तरह की एक्टिविटी जिससे किसी को नुकसान हो. So we are going to discuss some potential threats. Intellectual property rights. The internet is a relatively new place for business transactions and laws have not yet caught up the various types of digital property available online and the different ways to infringe upon them. Infringe means होता है to break a rule or law, means जो भी rules और laws किसी भी चीज़ को protect करने के लिए बनाए गए हैं उसको हम तोड़ देते हैं तो वो infringe होते हैं. So they just, what type of threats are there? You know what is intellectual property right? It is given to the person to protect its creativity. Okay, but what's the problem? You know there are so many digital properties nowadays. So it is sometimes it is very difficult to understand what type of digital properties are available online, because nowadays people are creating so many things, websites, so many things are there. So the most important thing is not yet they have decided what is digital property, how many types are there of digital property rights, and in how many ways these digital property rights are getting misused by someone. Second is patent violation. Violation means होता है an act that break against activity. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे उसका रूल, जो भी रूल बनाए गए हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो तोड़ना. पेटेंट आपको मैंने बताया था इन्वेंटर्स को दिया जाता है. ठीक है, those who have done something innovative which is not done by anyone earlier. जैसे ये जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं इनका भी पेटेंट होता है क्योंकि जो इनकी खुद की एक्टिंग है, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, इनकी खुद की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो इनकी एक्टिंग है, जो इनके डायलॉग डिलीवरी है, जो इनका स्टाइल है, तो इनका जो नेम है फिल्म इंडस्ट्री में कोई और दूसरा नहीं रख सकता. ठीक है,
कोई और पर्सन इस नाम को रख के सेम बिजनेस में या सेम इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकता। तो इनको पेटेंट मिला हुआ है, बट दिस पेटेंट इज नॉट फॉर एवर, इट इज़ फॉर 20 ईयर्स। आफ्टर डैट अगर ये जिनको भी पेटेंट मिला अगर वो रिन्यू करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंटर्स हैव लिटिल और नो पेटेंट फुटप्रिंट। जो न्यू इन्वेंटर्स हैं, जो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, कई बार उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो उनको पेटेंट नहीं मिलता। सपोज दे हैव क्रिएटेड समथिंग इनोवेटिव, अब उनको ये चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि जो भी उन्होंने इनोवेशन की है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए उनको पेटेंट मिलेगा, ठीक है। उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। दे कीप ऑन innovating something new and but they are not aware about digital property rights, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है, तो वो प्रूफ नहीं कर पाते। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट्स दीज अकर। अब ट्रेडमार्क इसके लिए मिलता है जब सपोज यू हैव मेड समथिंग यूनिक, आपने कोई नई डिज़ाइन, जैसे ज्वेलरीज हैं, यूटेंसिल्स हैं, तो आपने देखा होगा कुछ कंपनीज को ट्रेडमार्क्स मिलते हैं। अब जैसे तनिष्क है, तनिष्क को क्यों ट्रेडमार्क मिला, क्योंकि जो उसकी ज्वेलरी की डिज़ाइन है वो बिल्कुल यूनिक है और उसको कोई और, जैसे पीसी ज्वेलर है, ये सब इनको ट्रेडमार्क मिला हुआ है। इनकी ज्वेलरी की जो डिज़ाइन है वो यूनिक होती हैं और उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। बट होता क्या है, अब आजकल आपने देखा है जो रियल डिज़ाइंस हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आ रहे हैं, तो एनी हाउ हम उसको कितना भी कोशिश करें, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उसको कॉपी करके उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी इमेज को बूस्ट करना चाहते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट्स, यू नो वेरी वेल, कॉपीराइट इज गेट फॉर क्रिएटिविटी, जैसे स्किल्स के लिए, लिटरेरी वर्क के लिए मिलता है, या आपने कोई मूवी बनाई है या आपने कोई सॉन्ग कंपोज किया है, आर्टिकल लिखा है, उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। लेकिन आजकल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। लोग क्या करते हैं, एज वी पीपल डू व्हाट वी डू, वी कॉपी द मेक द इलीगल कॉपी ऑफ द प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे अब विंडोज़ हैं, उसकी कितनी सारी आपने देखा होगा इलीगल कॉपीज़ बनाई जाती हैं और उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है, या लोग बिना पे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब इन्फ्रिंगमेंट्स हैं कि इतने लॉज बनाने के बाद भी लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द थ्रेट्स। Now ways to protect digital property rights. Now there are some suggestions, some protective measures which can help them to protect their digital property rights. पहला है technical protection service. These services assist in controlling the distribution of digital intellectual property on the internet. TPS में क्या कर सकते हैं कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जितने भी डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जिनको कॉपीराइट मिला हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला हुआ है, यू कैन कंट्रोल दियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन, ठीक है। जब हम उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लोग जैसे पैनिट्रेट टूल्स के थ्रू पेड सॉफ्टवेयर्स की भी इलीगल कॉपी बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने चाहिए कि अगर कोई इलीगल या पायरेसी करने की कोशिश करता है तो उसको वो ना कर पाए। तो लाइक डाटा इंक्रिप्शन मीन्स हमारा जो भी ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है कैन बी चेंज इनटू अ पर्टिकुलर कोड यूजिंग इंक्रिप्शन टूल्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, हम सबको एक्सेसिंग अलाउ ही ना करें, which prevent hackers from hacking anyone's digital. So here we can do encryption. Okay, when we are exchanging the information, we can access the controlling so that everyone cannot access the information, and hackers can also do not hack digital property. Second क्या action हो सकता है, legal protection. Legal means we can make some laws against that. Digital property owners must include digital rights protection clauses by drafting legal and contractual agreements. These clauses restrict the scrapping of one software source code for reuse. Additionally, they engage a legal expert to swiftly act and respond to patent and other party writing. दूसरा हम legal laws की help ले सकते हैं, ठीक है। They can hire a person, they can hire a lawyer which can make so many laws for their company. If anyone is trying to hack their digital property rights, तो for that they can have so many laws. तो कोई भी ऐसा, इतने strict laws बनाने चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको 10 बार सोचना पड़े। ओके, एक्चुअली में लॉज तो बहुत सारे हैं लेकिन उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल प्रोटेक्शन सर्विस की जरूरत है। देन थर्ड इज कंट्रोल शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड।
Companies should regularly organize employee security awareness training and prohibit them from sharing material related to digital property with anyone other than the stakeholders. इसमें क्या होता है कि कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेन करना चाहिए. समटाइम्स यू डोंट नो दोज हु आर सॉफ्टवेयर कंपनी जिनकी होती है ना, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेन नहीं किया जाता. मे बी दे हैव लैक ऑफ नॉलेज एंड नॉट इंटेंशनली, समटाइम्स बाई मिस्टेक they share their code and you know to make any software coding is very very important. ठीक है, अगर आपको कोडिंग ही पता चल जाए उस सॉफ्टवेयर की तो ऑब्वियसली इसको यूज़ करना, उसको कॉपी करना इज़ टू ईजी. आप उसको फटाफट उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप उसको मार्केट में शेयर कर सकते हो. तो दीज जो सॉफ्टवेयर कोडिंग को हमें कंट्रोल करना चाहिए. तो फॉर दिस training is very important for the employees and we should keep telling them they should never share their code with anyone. In this way we can control the digital property rights. Now we are going to learn open source philosophy. Now we are going to learn some philosophies where we have different types of softwares और हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. कुछ ओपन होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, फ्लॉस होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं. तो we are going to learn one by one. Open source is a philosophy that promotes the free access and distribution of an end product, usually software or a program. ओपन सोर्स का देखो, कुछ सॉफ्टवेयर आपने सुनोगे ओपन सोर्स होते हैं. ओपन सोर्स का मीन्स होता है फॉर ऑल, इट्स फ्री फॉर ऑल एंड नॉट ओनली फ्री, इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी हार्डवेयर एंड एनी सॉफ्टवेयर. मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. आप किसी उस जैसे एंड्रॉयड है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी भी हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे इजीली रन करते हैं. ठीक है, इट मे एक्सटेंड टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. उनका मेन पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना सो डैट दे मेक यूज़ ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर्स. The term open source picked up footing with the growth of internet. Because of the need to create technology that may be customized according to the user's requirements and their dependence on expensive software. I told you ना, जैसे मैं अगर आपको एशियन कंट्रीज के बारे में बताऊँ, these countries are very poor and they cannot afford such expensive softwares. तो उनका मेन इंटेंशन ये भी है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लोगों तक पहुँचाएं. तो उससे क्या होगा, लोग एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स पे खर्चा ना करें. सच सॉफ्टवेयर जनरली गिव्स अस यूजर्स द फ्रीडम टू रन फॉर एनी पर्पस. क्योंकि जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर एनीथिंग. टू यूज एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर. एंड वन थिंग मोर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं देयर कोडिंग इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं. यू नो, जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है. दैट कोडिंग यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप उसी सॉफ्टवेयर में फर्दर इम्प्रूवमेंट करके उसको रीसेल कर सकते हो. एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी, रीडिस्ट्रीब्यूट इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि जब किसी भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग आपको अवेलेबल है एंड यू नो द प्रोग्रामिंग, तो यू कैन मेक फर्दर इम्प्रूवमेंट्स एंड distribute to the next party. And modified versions to others. These permissions are enforced through an open source license. उसके लिए आपके पास open source license होना चाहिए. जैसे आपके पास DL होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है. What do you mean by license? License are actually the permissions from the government that you are liable to do that particular work. तो लाइसेंस एक प्रूफ होता है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमें इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली है. Now types of softwares in terms of accessibility. Closed source, the software that is exclusively controlled and modified by its original creators, उसको हम proprietary, ऐसे विंडोज़ हैं. अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मैक्सिमम सॉफ्टवेयर क्लोज्ड हैं. क्लोज्ड क्यों का मतलब होता है विच इज़ नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. विंडोज सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्लोज्ड और प्रोप्राइटरी में आते हैं. क्लोज्ड मतलब सबके लिए नहीं है. अगर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो तो यू हैव टू पे फॉर इट. ओके, एंड इट कैन रन ऑन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. यू नो, विंडोज कैन नॉट रन ऑन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉरी, ऑन ऑल द हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स. उनका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप विंडोज रन कर सकते हो. ओपन का अपोजिट,
ओपन में क्या है, फ्री है, किसी पे भी रन करो, किसी भी पर्पज के यूज़ करो, बट क्लोज सोर्स इज नॉट फॉर दैट। जो भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्लोज कहते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड ही नेवर अलाउड टू यूज दियर सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज। अब अगर आप उनसे सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो ये भी नहीं कि आप किसी भी पर्पज के लिए यूज़ करो, ये भी वो अलाउ नहीं करेंगे। फ्री, the software whose terms of distribution allows users to study, change and distribute it is called free software. Free software में क्या होता है कि आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ, इसका मतलब उसकी सोर्स कोड अलाउ है, ठीक है, आप उसमें स्टडी कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। These type of software is also permitted to be used for any purpose. Redistribution of its versions must also be distributed with the original terms of free use, modification and distribution known as copyleft. अब आपके माइंड में होगा कि ओपन और क्लोज तो आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि उसमें आपको क्लियर है कि क्लोज मतलब सबके लिए नहीं है, पेड है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ओपन उसका अपोजिट होता है। फ्री में क्या होता है, फ्री भी ओपन की तरह है, ठीक है, बट फ्री में क्या प्रॉब्लम है, फ्री में जैसे आपने कोई फ्री सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड अवेलेबल है, उसमें आपने चेंजेस करे, ठीक है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आगे सेव कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जब आप फ्री सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके उसे आगे भेजते हो, सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसमें भी आपको दूसरे यूज़र को भी अलाउ करना है। ओपन में क्या है, आपने ओपन सॉफ्टवेयर लिया, उसमें चेंजेस करे, उसको आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद आप नेक्स्ट पर्सन को वो राइट्स अगर देना नहीं चाहते हो, आप उसको एज अ प्रॉपर्टी सेल करते हो तो कर सकते हो, लेकिन फ्री में ऐसा नहीं है। फ्री में क्या होता है, अगर आपने कोई फ्री सॉफ्टवेयर लिया है और उसमें सब कुछ चेंजेस करके नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई प्रॉपर्टी मिलेगा, उसके लिए कोई कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा। आप क्या उसके लिए वही जो सेम फ्री आपको जो भी टर्म्स मिली हैं मॉडिफाइड, वही सेम चीज़ें आपको उस पर्सन को भी देनी पड़ेगी जिसको आप ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, सारे फ्रीडम है, सब कुछ है, लेकिन जब आप इसको आगे किसी को फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हो तो उसको भी आपको वही सारे राइट्स देने पड़ेंगे जो आपको मिले। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये सॉफ्टवेयर अपनी मेहनत से बनाया है तो मैं इसमें जो भी कुछ चेंजेस या जो करें मैं वो आपको नहीं दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो आपको देने पड़ेंगे। ओपन में आप डिनाई कर सकते हो, फ्री में नहीं कर सकते। नाउ ओपन सोर्स, द टर्म ओपन सोर्स इन जनरल रेफर्स टू समथिंग दैट इज पब्लिकली एक्सेसिबल for all, can be modified and shared by anyone. In the context of software development, open source refers to a computer software whose source code is available in the public source code by जो programming होती है, and may be modified, improvised or debugged. Debug मतलब अगर कोई errors है तो वो use कर सकते हो। The original developers of the software may or may not change a nominal fee for support and further। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्री में तो बिल्कुल फ्री, आपको एक पैनी भी नहीं देगी। ओपन में क्या होता है कि जब आप सोर्स कोड लेना चाहते हो तो सोर्स कोड आपको मिल सकता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है और हो सकता है कि उसके लिए आपसे थोड़ा चार्ज भी किया जाए, दोनों पॉसिबिलिटी। फ्री में तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ओपन में क्या है, हो सकता है अगर आप सोर्स कोड भी लेना चाहते हो, कोडिंग भी लेना चाहते हो सॉफ्टवेयर की, तो आपको थोड़ा सा पे भी करना पड़े, मैंडेटरी नहीं है बट मे भी। Now, what are the differences between open source and free software? The main difference between open source and free software is that of philosophy and purpose. तो पढ़ लेते हैं क्या है। Open source is a development methodology where the focus is on improvising the software. देखो ओपन सोर्स की जो मेन मैथोलॉजी है वो क्या है, इनका मेन पर्पस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर सॉफ्टवेयर को शेयर करेंगे, उसके सोर्स कोड को शेयर करेंगे तो सॉफ्टवेयर में क्या होगी, इम्प्रूवमेंट। जैसे आपने 9th क्लास में लिब्रे ऑफिस के सारे टूल्स को यूज़ किया था, राइटर, कैल्क, तो ये ओपन सोर्स क्यों है, जैसे जैसे आगे लोगों को ये मिलता जाता है, जो प्रोग्रामर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो वो इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करती जाती हैं। उनको लगता है ये कमी है, उन्होंने उसको और एड ऑन कर दिया। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, कि एक सॉफ्टवेयर जब बना के उसको छोड़ दिया तो वो आगे 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 क्या होता है, लोग उसमें और नए फीचर्स ऐड करते जाते हैं, तो वो इम्प्रूव होता जाता है, उसकी परफॉर्मेंस और बेटर होती जाती है। तो ओपन सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और फ्री सॉफ्टवेयर इन कंट्रास्ट इज अ सोशल मूवमेंट वेयर द फोकस इज ऑन द यूजर्स फ्रीडम। और फ्री सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि वो यूजर्स को फ्रीडम देना चाहते हैं,
कि यूज़र्स को पूरी फ्रीडम है, वो उस सॉफ्टवेयर को कैसे भी रन करें, कैसे भी उस पर काम करें, कैसे भी उसमें चेंजेस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें, मॉडिफाई करें, कुछ भी। तो दोनों का है, दोनों फ्री, ठीक है, सब कुछ है, सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? ओपन सोर्स का मेन फोकस होता है सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना, ठीक है, और फ्री सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है लोगों को फ्रीडम देना, जिससे वो चाहें जो करें। एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। Now open source model, the open source model encourages collaborative participation, collaborative मतलब कम्युनिटी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ फेयर हो, वाइट हो, मेरिटोक्रेसी, कम्युनिटी ओरिएंटेड, किसी कम्युनिटी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो वो पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वे आर प्रोग्रामर्स पब्लिश देयर वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर बैक टू द कम्युनिटी। द OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव मतलब होता है किसी काम के लिए आगे खुद से बढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइंस द फॉलोइंग क्राइटेरिया फ्रॉम अ प्रोग्राम टू क्वालिफाई एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहला क्या है? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मैंने अभी आपको बताया ओपन में क्या होता है, बिल्कुल फ्री हो, आपने कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किए, उसमें चेंजेस किए, आप चाहे उसको सेल करो, अपने नाम से सेल करो, कुछ भी करो, नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू। पार्शियल करो, होल करो, ऐसा जैसे शैल बी फ्री ऑफ एनी रॉयल्टी चार्ज और मतलब आप उसमें प्रॉफिट के लिए उसको बेच सकते हो। दूसरा सोर्स कोड, द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड द सोर्स कोड एज वेल एज इट्स कंपाइल्ड फॉर्म। जो भी आप प्रोग्राम लोगों को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें आपको लोगों को सोर्स कोड देना भी जरूरी है। In cases where it is not included, source code must be really accessible from public sources on the internet। अगर आप जब सॉफ्टवेयर किसी को दे रहे हो, बेच रहे हो, अगर वो सोर्स उसमें नहीं आप साथ में दे रहे हो तो आप उसको इंटरनेट पे डाल सकते हो, लोग जिससे एक्सेस करें। डिराइव्ड वर्क्स, डिराइव मतलब होता है रीयूज करना। The license must allow modifications and derived works. It must allow them to distribute under the same terms as the license of the original software। ठीक है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि अगर आप किसी को देते हो तो वो भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसको रीयूज कर सकता है। डिराइव मतलब उसमें से रीयूज करना उसको। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन्ड। द लाइसेंस में रिक्वायर्ड डिराइव वर्क्स टू कैरी डिफरेंट नेम और वर्जन। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है उसमें आगे लोग मॉडिफाई फर्दर एडिशंस करते जाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने उसमें इम्प्रूवमेंट की है, अपना इन्वॉल्वमेंट किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है उस सॉफ्टवेयर को बेटर बनाने में, तो उन सब का भी नाम उसमें ऐड ऑन होता जाता है। ये नहीं कि आपने किया तो सिर्फ आप ही का नाम होगा, उससे पहले वाले और उसके आगे जो भी लोग उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उन सब का नाम होता जाता है, ऐड ऑन होता जाता है कि सबको क्रेडिट मिलेगा उस चीज़ का। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स और ग्रुप्स, क्योंकि ये सबके लिए है तो इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या उस ग्रुप को नहीं देना है या उस कंट्री को नहीं देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल मीन्स ट्राई टू हार्ड और ट्राई वर्क हार्ड। The license must not restrict anyone for making use of the program in specific field. For example, it may not restrict the program from being used in a business or for genetic research. Okay, means इसको किसी भी फील्ड में यूज़ किया जाता है, चाहे रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए चाहे किसी बिजनेस के लिए यूज़ किया जाए। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो पार्शियलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, द राइट्स अटैच्ड टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल। ठीक है, मतलब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट होंगे। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्पेसिफिक नहीं है कि ये इस बिजनेस के लिए यूज़ होगा या किसी रिसर्च के लिए यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, जैसे अब विंडोज़ है, विंडोज़ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको पता है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है तो वो हर सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, अब अगर आप विंडोज़ में ओपन भी सोर्स सॉफ्टवेयर, अब जैसे लिब्रे ऑफिस है, आपने देखा आप उसको विंडोज़ पे भी रन कर सकते हो, तो यहाँ पे वो बात फिट बैठती। लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ ही
कंपेटेबल होंगे। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही रन करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता। लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, नो प्रोविजन ऑफ लाइसेंस मे बी डिपेंडेंट ऑन एंड, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी टेक्नोलॉजी की कोई हार्डवेयर डिपेंडेंसी या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये सारे जो हैं ये प्रिंसिपल्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के हैं। In the next video we will complete this chapter. So for today you please read these 3 pages. Thank you.